हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 24 आंसर्स टाइम एंड हम 30 डेज 30 मिनट्स एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट अब एंड पे पहुंच रहे हैं. सो वेलकम टू अंजन कला शायज. दिस इज़ 24th डे बीइंग completed. So we'll only be doing 25, 26, 27 and 28 day now in the form of an exercise, and day 29 and day 29 30 to be reserved for your revision and everything, right? चलो जल्दी से हम अपने आंसर्स देखते हैं. द फर्स्ट ज्योग्राफी क्वेश्चन इज दैट विच स्टेट यूटी इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया. दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन. द आंसर इज कर्नाटका. नाउ सी हियर. सो you see this option here that Karnataka stands on top regarding the coffee production with a share of more than 75% total coffee produced in India. So study about it, like what are the two types of coffee grown in India, etc. What you have to do, so when you prepare your geography ना, तो आप NCERT में एक चैप्टर है एग्रीकल्चर पे, मैंने आपको दिखाया भी था when I was discussing the जूट वाला क्वेश्चन विथ यू वंस व्हेन वी वर डूइंग ज्योग्राफी. सो देयर वी डिड डिस्कस दिस, राइट? मतलब मैंने आपको वो सेगमेंट दिखाया था दैट वी हैड दिस सेक्शन कमिंग फ्रॉम द NCERT ऑल्सो. So you don't have to worry much, just prepare it from there also and it would be good. Now let us come back to the question. So first I'll show you one question. ठीक है, एक तो ये देखो एक एग्जाम्पल जहाँ 2022 में दे हैव गिवन विथ रेफरेंस टू टी बोर्ड इन इंडिया, राइट? सो उस तरह से सडनली किसी क्रॉप को लेकर के भी एंड बॉडी एसोसिएटेड कैन बी आस्क्ड. सो एक्सप्लोर लिटिल बिट ऑन द कॉफ़ी फ्रंट फॉर दैट मैटर. बट ऑल्सो अगर हम सिर्फ कॉफ़ी देखते हैं, लाइक हैव दे आस्क क्वेश्चंस ऑन कॉफ़ी. So let us try and see, and we'll see certain questions there as well. See, first question is history related, that which of the following groups of plants was domesticated in the new world and introduced into the old world, but coffee had been an option. So whatever plants you're seeing here, tobacco, cocoa, rubber, cotton, coffee, sugarcane and wheat. ठीक है, these are distinct ones. Prepare about them. That would be my suggestion if it has been in the news, sorry, if it has been in the even in the option of PYQ. Same goes for this. ये MSP का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन अगर कॉफ़ी मेंशन है तो ये पता होना चाहिए एंड रीड लिटिल बिट ऑन इवन द अदर वंस. ठीक है, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ईदर वे इसका सिग्निफिकेंस तो है. Another geography question is on the ocean current. So we know about Gulf Stream that it's an ocean current, right? So I asked you whether it's a warm or cold ocean current, and then also you have to tell the name of the ocean associated. So firstly, it is a warm ocean current in the North Atlantic Ocean. Even if you just mention Atlantic Ocean, that's fine enough. ठीक है, North तो हम बस convenience के लिए बोलते हैं, it's just Atlantic Ocean. So you see the location of the Gulf Stream here. You can see it is a warm current, ठीक है, and it is in the North Atlantic Ocean area. Okay, so prepare firstly static में you prepare the topic of oceanography. ठीक है, जैसे आप बाकी पढ़ते हो ना, क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो, फिर आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, तो पहले आप ओशनोग्राफी पढ़ लेना एंड देन विद इन दैट स्पेसिफिकली do the ocean currents. It's very important to do and also understand it's very difficult to remember. ठीक है, कि कौन सा वार्म है कौन सा करंट है एट वंस. सो उसको थोड़ा थोड़ा करके डेली 2 से 3 इफ़ यू वुड प्रिपेयर देन आराम से इन द गुड इनफ टाइम यू वुड बी एबल टू डू दैट. चलो नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमें जानना है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा टू द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस इज डन. और इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? सो दैट्स बीइंग इन गिवन इन आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, जहाँ पे बात की गई है allocation of seats in the House of the People, that is Lok Sabha, to the states and to be readjusted on the basis of 1971 census. ठीक है, ओके. एंड डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो 2001 सेंसस के बेसिस पे. तो ये कब कैसे क्या डिसाइड किया गया था, इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको इलेक्शन वाले पूरी सीरीज़ जो है, आई हैव टोल्ड यू ऑल्सो कि सी दिस सीरीज़ दैट आई एम रनिंग ऑन यूट्यूब, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, तो उसमें ये सारी चीज़ें कवर की जा रही हैं. सो आई विल टेल यू. ये देखो डिलिमिटेशन के बारे में हमने बात किया था, ठीक है, कौन से ईयर के क्या क्या डिसाइड हुआ, ठीक है, एवरीथिंग आई हैव टॉट देयर. सो इफ़ यू हैव नॉट डन इट डू इट. वहाँ तो मैं पढ़ा रही हूँ, पूरा टॉपिक ही पढ़ा रही हूँ. ओके, नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स का टॉपिक. विच एंड हाउ मेनी कंट्रीज ज्वाइंड ब्रिक्स रिसेंटली. सिंपल सा क्वेश्चन था कि ब्रिक्स में पहले से ऑलरेडी कुछ देश हैं, बट नाउ सर्टेन न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड. विच आर देम एंड हाउ मेनी ऑफ देम? सो 5 कंट्रीज हैव ज्वाइंड एंड आंसर इज इजिप्ट, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया एंड UAE. पहले से ब्रिक्स में कौन थे ये तो आपको पता ही होना चाहिए. आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. इट्स वेरी ईजी.
आप इसके बेसिस पे भी नाम से निकाल सकते हो, यू नो दोज इनिशियल्स, सो दैट्स ईजी. लेकिन दिस इज़ द न्यू वन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई. ठीक है, नाउ दे हैव बिकम फुल मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स. ठीक है, एंड दिस इज़ February 2024 न्यूज़. अब ये सोचो कि वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट टू बी डन. सो इन्होंने पहले भी बहुत बार डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर क्वेश्चन पूछा हुआ है. आई जस्ट शो यू सम ऑफ देम. सी वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दैट इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ देम, चाहे वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो AIIB, या फिर MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, या फिर SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, बट इंडिया मेंबर है या नहीं, पहले तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. उसके अलावा जैसे G20 जब आया था तब भी पूछा हुआ था, पोलर कोड को लेकर पूछा हुआ है. खैर पोलर कोड वुड नॉट बी ऑन द मेंबर्स, बट चलो UNGL को लेकर पूछा हुआ है. सी मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्किश स्टेट. ठीक है, ये पूछा हुआ है, सीधे सीधे मेंबर्स पूछा हुआ है. और आई विल शो यू of different international organizations. This is also kind of related to it indirectly, even though they ask you about a particular kind of a phenomena, but it relates to, let's say, option में जो दिया हुआ है, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, वर्ल्ड बैंक हो, या IMF हो. ठीक है, तो वो ऑर्गेनाइजेशंस भी हमें करने हैं. देन दिस सीधे सीधे पूछा गया है, विच आर द मेंबर्स ऑफ G20. राइट, तो इतना क्वेश्चंस का आइडिया से आपको ये तो समझ में आ जाएगा कि सेपरेट ऑर्गेनाइजेशंस आर टू बी डन, एंड विच ऑर्गेनाइजेशंस बिकम इम्पॉर्टेंट बिकॉज देर आर सो मेनी, ऑफ कोर्स विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर सम रीज़न. एंड नाउ ब्रिक्स में ऑलरेडी सिर्फ 5 थे, नेम भी इजीली बता देता है 5 हैं, बट अगर और ऐड हुए हैं तो वो आपको लिस्ट दे सकते हैं, एंड दे कैन सिंपली आस्क यू दैट विच ऑफ दीज आर द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स. ठीक है, और ऑफ कोर्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी पूछ सकते हैं कि क्या इंडिया इनमें से किसी का मेंबर है या नहीं है. सो प्रिपेयर देम. अच्छा, इनका लोकेशन भी देख लेना आराम से मैप में. ठीक है, मैप में डोमिनिका मार्क करना था. द रीज़न दैट दे हैव अनाउंस्ड, so I asked this question because they had announced to create world's first sperm whale reserve. तो हम न्यूज़ देख लेते हैं environment perspective से. I asked that question. This is the location. See, this is the location. ठीक है, कैरिबियन सी में. तो ये ध्यान रखना है, ये इसका सेपरेट दिया हुआ है, कैरिबियन सी है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन है. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जैसे आपने अगर कहीं भी सुना होगा, पढ़ा होगा, तो अपने क्यूबा का नाम बहुत सुना होगा, पढ़ा होगा, तो आपको अभी भी समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा लोकेशन है. ठीक है, इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, बीच में हमारा कैरिबियन रीजन जो है, वहीं पे यू आर सीइंग दिस प्लेस. सो इसको थोड़ा सा अच्छे से न्यूज़ भी पढ़ लेना, and just do the mapping and the nearby things. Of course, especially water bodies you should be knowing, right? चलो, and of course current affair का एक आपको न्यूज़ थ्रू मैप ओनली करंट अफेयर का एक आंसर भी पता लग गया. सो दीज आर ओवरलैपिंग थिंग्स. आई कैन गिव इट इन दिस ऑल्सो इन मैप्स और दिस ऑल्सो इन करंट अफेयर. सो ये मल्टीपल हो जाता है. देयरफॉर आई से कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली both we are able to prepare through this. All right, so now we'll meet on the very next day with day 25 questions, and we'll be very soon finishing the entire series. So take care till then. Bye bye, have a great time ahead.